1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशंस 2 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स, होसिया 1 चैप्टर 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन से 17 वचन, होसिया की पुस्तक, होशे की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेवलेशन 2 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन से भरपूर होना चाहते हैं और पिता बिना वजह से हमें कोई कारण नहीं है तेरा वचन पढ़ने के लिए खुदा परमेश्वर, लेकिन हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने समय को तेरे वचन को पढ़ने में खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, हम जब बाइबल रीडिंग को करते हैं खुदा परमेश्वर, उसके बाद वाला समय में भी खुदा एक अच्छा सा लंबा समय तेरे वचन पढ़ने में हम लगा दे खुदा परमेश्वर, और हम अपने अंदर भरते जाए खुदा। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, वो एक बड़ा तेज और परमेश्वर तेरे महिमा का कारण बन जाता है, वो तेरी आग का कारण बन जाता है। हमारे अंदर खाली जगह नहीं रह जाती है खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है। हम परमेश्वर तेरी योजना को समझ पाते हैं और हम पिता अपने रास्ते छोड़कर जाने वाले लोग नहीं रहते हैं, हम लड़खड़ाने वाले नहीं रहते हैं। अब फादर गॉड, तेरी परमेश्वर पिता दृढ़ता हमारे अंदर निवास करने लगती है। अब ये सब कुछ होने के लिए पिता परमेश्वर हम मांगते हैं एक बड़ा समय हम तेरा वचन बिना वजह से, बिना कारण से हम पढ़ते रहने के लिए मांगते हैं। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते, पवित्र आत्मा आज अभी जो वचन हम पढ़ रहे उसमें हमारी सहायता करो और हमें समझाइए। आपके बिना कोई हमको समझा नहीं सकता है और आप ही हो जो पिता परमेश्वर हमें स्थिर कर सकता है वचन समझाकर। आप ही हो पवित्र आत्मा जो हमें खाली खनखनाने वाले बर्तन नहीं रहने देगा। आप ही कारण है परमेश्वर के आत्मा, आपके ऊपर हम निर्भर है। इसके लिए हम आपके संगति में मांगते हैं कि आज पढ़ने वाले वचनों को हमें सिखा और आने वाला समय और ज्यादा तेरे वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Chapter 2 1 verse से 17 verse, Christ's message to the churches. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days.
Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And to the angel of the church in Pergamos write these things, saith he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. हम हिंदी में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से। 2 अध्याय का 1 वचन से 17 वचन 2 अध्याय का 1 वचन से 17 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसुस को संदेश। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्मुरना को संदेश। 8 वचन से आगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी।
पिरगमोन को संदेश 12 वचन से आगे। पिरगमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम के शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। और रिबांता का बरासा दारे बेखती न रबाहंतरासा, मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। ओके, 15 वचन से आगे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। लिरा खतीन इरखल्लरबा अखसिया खूब लगा रहा सा दहत इलरबा अखात किन बरखसियां दुखम्बा आसा। मेरे परमेश्वर, बलाक की रीतियों के समान परमेश्वर, जो भी हमने मूर्तियों के साथ कुछ खाया पिया होगा और व्यभिचार करने में खुदा अगर हमारे कोई हिस्से हैं, नासरी यीशु के नाम में हम उन सारे बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई भी हिस्सा है खुदा परमेश्वर, तो हमें छुड़ा ले। हमारे शरीर के अंदर के उपद्रव ख़त्म कर, हमारे घर परिवार के अंदर के उपद्रव ख़त्म कर और हमें शांति दे। हम तुझसे विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में। तूने कहा मन फिराओ तो मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। हम मन फिराकर तेरी ओर आते हैं पिता, मांगते हैं कि हमारा जीवन साफ कर, हमारा शरीर साफ कर, हमारे शरीर के उपद्रव के सारे काम बंद करके परमेश्वर हमें शांत कर और हमें तेरे रास्ते चला और तेरे नाम को ऊंचा करा, ताकि हमारे घर परिवार के अंदर पवित्रता हम बनाए रख सके। परमेश्वर हमारे घर के अंदर की अशुद्धता ख़त्म कर दे। हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में जो खुदा खालीपन है, जिसमें परमेश्वर पिता शैतान का मूर्तियों का काम है, जिसमें शैतान के ऑल्टर के काम है, जिसके अंदर खुदा परमेश्वर व्यभिचार है, वो जगहों को खाली कर दे। उस जगह में परमेश्वर तेरा आत्मा आने दे, तेरे वचन आने दे, ताकि वो जगह शैतान को ना मिले। मेरे पिता परमेश्वर, जो आत्मा पिता परमेश्वर तीर के समान आता है और हमारे घर के लोगों को पिता परमेश्वर गुमराह कर देता है, किसी दूसरे औरत के पीछे निकाल लेता है, किसी दूसरे आदमी के पीछे पत्नियों को लेकर जाता है। खुदा परमेश्वर, ऐसे कितने गंदे काम खुदा जो परमेश्वर मूर्तियों के कारण होते हैं, मेरे खुदा उनके खाए हुए कारण खुदा, उनके सीखी हुई बातों के ऊपर चलने के कारण पिता घर बिगड़ जाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक अवस्था दुरावस्था पिता परमेश्वर, हम पिता शर्म से झुकने लायक हो जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा शरीर का ये हर एक टूटापन खुदा हम तेरे सामने ला कर देते हैं। हमें पिता परमेश्वर दुरुस्त कर और हमारे अंदर वो शक्तियाँ आकर पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर तेरे विरोध लेकर जाने मत दे खुदा। वो शक्तियों को हमारे अंदर से तेरे विरोध लेकर जाने का रास्ता मिलने मत दे खुदा। हम इतने ज़्यादा परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत हमारे इर्द गिर्द में पाए खुदा परमेश्वर की वो शक्तियाँ उन स्वर्ग दूत को पार करके आने नहीं पाएगी। जो पिता इंसान खुदा हमको देख पाता है आत्मा की आंखों से और हम पर वार कर पाता है,
मेरे परमेश्वर, जो अपने आप को पिता परमेश्वर आत्मिक कहता है लेकिन वो आत्मिक नहीं है, जो पिता परमेश्वर हमारे प्रिय जनों के अंदर के कमज़ोर अवस्थाओं को जानता है और लड़ाइयाँ झगड़े और पिता परमेश्वर दिलों को तोड़ना, ऐसे उपद्रव हमारे अंदर वो समय समय के साथ ठोकना चाहता है मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है हमारे बारे में। अबा फादर गॉड, ऐसे लोगों को संगति में हमारे रहने मत दे, उनके साथ का कनेक्शंस हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए और हमारा जीवन बदल जाए। नासरी यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर, उसके कंट्रोल में हम ना रहे खुदा, ऐसे आत्मा के चलाने वाले कंट्रोल के अंदर हम ना रहे खुदा परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तेरा पावर पाए हुए लोग हैं खुदा, जिसके सामने खुदा कोई महारथी रथी चल नहीं सकता है मेरे खुदा, चाहे उसको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो दुष्ट आत्माओं को निकालने का और रखने का, फिर भी खुदा परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम हमारे अंदर भी है खुदा परमेश्वर, कि हम कमज़ोर है, इसके लिए हमारे अंदर से परमेश्वर तेरा आत्मा का बल दिखाया जाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरा आत्मा का बल हमको दिखाया जाता है। थैंक यू फादर गॉड, हमारे अंदर तेरा आत्मा का बल दिखता है खुदा, इसीलिए खुदा परमेश्वर हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे कमज़ोर होना मतलब परमेश्वर को जगह बनता है कि वो आकर हमारे अंदर उसके बल के काम दिखाए। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा बल का काम तो हम में दिखाता है, तुझे धन्यवाद करते हैं, और शैतान के काम तो फेल कर देता है, तुझे धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।